عزیزی طلبا، آج میں آپ سب کو ناول کیا ہے کے متعلق کچھ باتیں بتاؤں کہ ناول کیا ہے، ناول کسے کہتے ہیں، ناول کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ اسی موضوع پر اظہار خیال کروں گا، چونکہ امتحان میں سوال پوچھ کیا جاتا ہے کہ ناول کیا ہے، یا ناول کسے کہتے ہیں، یا ناول کو آئینہ حیات کیوں کہتے ہیں، ناول کو آئینہ حیات کس نے اور کیوں کہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی موضوعات پر میں آج جو ہے آپ سے گفتگو کروں گا کہ ناول کیا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جانیں کہ ناول اطالوی زبان کے لفظ ناویلا سے بنا ہے۔ کس سے؟ ناول اطالوی زبان کے لفظ ناویلا سے، کس سے؟ اطالوی ناول جو ہے اطالوی زبان کے لفظ ناویلا سے بنا ہے۔ یہ اطالوی کا اٹیلی لینگویج کو اطالوی کہتے ہیں۔ اطالوی زبان کے لفظ ناویلا سے بنا ہے۔ کس سے؟ اطالوی زبان کے لفظ ناویلا سے بنا ہے۔ کیا؟ ناول۔ ناول اطالوی زبان کے لفظ ناویلا سے بنا ہے، جس کے معنی ہے نیا۔ میں نے بتایا کہ ناول انگریزی زبان کا لفظ ہے جو کہ اطالوی زبان سے بنا ہے۔ کیا ہے؟ ناول انگریزی زبان کا لفظ ہے۔ ناول انگریزی زبان کا لفظ ہے جو اطالوی زبان کے لفظ ناویلا سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے نیا۔ ناول اطالوی زبان کے لفظ ناویلا سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے نیا۔ ناول اردو نثر کی ایک اہم ترین صنف ہے۔ ناول اردو نثر کی ایک اہم ترین صنف ہے۔ اس میں عام طور سے انسانی زندگی کی، اس میں یعنی ناول میں عام طور سے انسانی زندگی کی مکمل تصویر کشی یا منظر کشی کی جاتی ہے۔ ناول اردو نثر کی ایک اہم ترین صنف ادب ہے، صنف نثر ہے، جس کا تعلق حیات انسانی کی عکاسی اور ترجمانی سے ہے۔ ناول کی تعریف اگر ہم لکھیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ناول وہ نثری قصہ ہے، ناول وہ نثری قصہ ہے جس میں انسانی زندگی کی مکمل تصویر کشی کی جاتی ہے۔ ناول وہ نثری قصہ ہے جس میں انسانی زندگی کی مکمل تصویر کشی پوری طریقے سے انسانی زندگی میں جو بھی حالات واقعات آتے رہے ہیں سب کی تصویر کشی کی جاتی ہے۔ اس میں ناول حیات انسانی میں ناول میں حیات انسانی کی مکمل تصویر کشی کی جاتی ہے۔ اس میں ناول وہ نثری قصہ ہے، ناول وہ نثری قصہ ہے جو انسانی زندگی سے وابستہ ہوتا ہے، اور اس میں حیات انسانی سے جڑی ہوئی باتوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ اگر ہم اس کو تعریف کے طور پہ مانیں، کیونکہ اگر اس میں امتحان میں لکھنا ہو تو وہی ناول کسے کہتے ہیں، مختصر تعریف لکھیے، اس کا سیدھا جواب ہو جائے گا کہ ناول وہ نثری قصہ ہے جس میں حیات انسانی کی مکمل تصویر کشی یا ترجمانی کی جاتی ہے۔ بالفاظ دیگرہ یعنی کہ دوسرے لفظوں میں ان ادر ورڈز ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو نثر کی وہ صنف جس میں انسانی زندگی کی مکمل تصویر کشی کی جاتی ہے اس کو ناول کہتے ہیں۔ ناول نگاری دراصل انسانی زندگی کی ناول کا فن جو ہے، یعنی ناول کو لکھنے کا جو ڈھنگ ہے وہ کیا ہے، عموماً معاشرتی یا انفرادی، معاشرتی یعنی سوشل، انفرادی یعنی انڈیویژول، معاشرتی یا انفرادی زندگی کی ترجمانی کا فن ہے۔ ناول میں عام طور سے سماجی زندگی یا ذاتی زندگی، یعنی انسان کی پرسنل لائف یا کی سوشل لائف، دونوں کا ذکر جو کیا جاتا ہے، اس ذکر کو ناول نگار اپنے فکر و خیال سے ایک نئی حقیقت کو خلق کرتا ہے، ایک نئی حقیقت کو جنم دیتا ہے۔ چونکہ انسان کی جو سوشل لائف ہوتی ہے، سماجی زندگی جو ہوتی ہے، اور انسان کی جو انڈیویژول لائف ہوتی ہے، یعنی پرسنل لائف جو ہوتی ہے، اس میں کچھ حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ایک ناول نگار اپنے فکر سے، اپنے خیال سے، اپنی کاوش سے اس کو منظر عام پر لاتا ہے،
उसको क्या कहते हैं, तो उस कोशिश को नावल निगारी का नाम, जो कि ये हकीकत क्या होती है, इंसानी जिंदगी की हकीकत से माखूज होती है। मेरे ख्याल से बात मुझे अभी दोहरानी पड़ेगी। नावल उर्दू नस्ल की एक अहम तरीन सिनफ है जिसका ताल्लुक हयाती इंसानी की तर्जुमानी और तस्वीर कशी से है। नावल का फन माशरती या इनफरादी जिंदगी की तस्वीर कशी का फन है। नावल निगार अपने फिक्र और ख्याल से एक नई हकीकत को मंजर आम पर लाता है जो इंसानी जिंदगी से माखूज होती है। चूंकि नावल में इंसानी जिंदगी के हर एक पहलू का जिक्र होता है, शायद इसीलिए नावल को आईने हयात भी कहते हैं। नावल की तारीफ लिखते हुए एक मशहूर मुफक्किर, जिसको प्रिस्टले कहते हैं, प्रिस्टले नामी एक मुफक्किर ने ये बताया है कि नावल आईने हयात है। प्रिस्टले ने नावल को आईने हयात बताया। नावल को आईने हयात क्यों कहा जाता है? क्योंकि नावल उर्दू नस्ल का वो हिस्सा है जिसमें इंसानी जिंदगी की मुकम्मल तर्जुमानी की जाती है। नावल, या हम ये कह सकते हैं कि नावल वो आईना है जिसमें इंसानी जिंदगी की हर तरह की तस्वीर आप देख सकते हैं। नावल की जब हम किस्मों की बात करें तो उन्होंने नावल की दो किस्म होती हैं। कौन कौन से नावल होते हैं? तरबिया नावल। नावल की जब किस्मों की बात करें तो नावल की दो किस्में होती हैं। एक होती है तरबिया नावल, दूसरी होती है अलमिया नावल। नावल की जब हम किस्मों की बात करें तो नावल की किस्में दो तरह की होती हैं। एक तरबिया, ठीक है, क्या होता है, नावल की जो पहली किस्म होती है तरबिया नावल, जिसको हम कॉमेडी नावल भी कह सकते हैं, ठीक है, तरबिया नावल, कॉमेडी। दूसरा क्या होता है? अलमिया नावल। दूसरा होता है अलमिया, इसको हम ट्रेजेडी कह सकते हैं। क्या होता है? ट्रेजेडी नावल भी कह सकते हैं। तो ये तरबिया और अलमिया नावल में फर्क क्या होता है? वो नावल जिसकी इब्तिदा भी खुशियों के साथ हो और जिसका खात्मा भी खुशियों के साथ, उसको क्या कहते हैं? तरबिया नावल कहते हैं। वो नावल जिसकी शुरुआत और जिसका खात्मा दोनों को इस पर हो, खुशियों के साथ हो, ऐसे नावल को क्या कहते हैं? तरबिया नावल कहते हैं। लेकिन ऐसा नावल जिसमें इंसानी जिंदगी का खात्मा गमों के साथ, उसको अलमिया नावल कहते हैं। जैसे मुंशी प्रेमचंद के जरिए लिखा गया नावल गोदान है, उसके आखिरी हिस्से में होरी की जिंदगी की जिन मुश्किलात का जिक्र किया गया है, उससे अंदाजा हो सकता है कि वो बहुत ही मुश्किल तरीन सिर्फ है। मतलब उससे ये अंदाजा हो सकता है कि वो नावल क्या है? अलमिया है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अलमिया नावल वो होता है जिस नावल की एंडिंग या जिस नावल का खात्मा किसमें हो। अब अलमिया नावल के कुछ मिसाल में आपको बता, जैसे कि अल्लामा राशिद, ये आमिना कलाल, सैयदा कलाल, ये अलमिया नावल है। रुस्वा का रुस्वा भी अलमिया नावल ही है। तरबिया नावल वो नावल होता है जिसमें खुशियों की बात कही गई है, उसको हम तरबिया नावल कह सकते हैं। अब आती है बात नावल की अज्जा तरकीबी। नावल के अज्जा तरकीबी कितने होते हैं? नावल के अज्जा तरकीबी यानी कि नावल के कौन कौन से अज्जा हैं जो नावल में होना जरूरी है। नावल के अज्जा तरकीबी, नावल के अज्जा तरकीबी, इसमें भी कई बातें शामिल हैं। नावल के अज्जा तरकीबी में पहले आता है किस्सा, नंबर 1 पर। नंबर 2 पर आपका आता है प्लॉट। नंबर 3 पर आता है किरदार निगारी। नंबर 4 पर आपका आता है मुकादमा। फिर उसके बाद आता है
कशी, मंजर कशी। फिर होता है नुक्ता नजर, फिर होता है नुक्ता नजर, फिर होती है नावल की जुबान, नुक्ता नजर, फिर होता है नावल की जुबान, नावल की ज़बान। ये है नावल के अज्जाए तरकीबी। अब सलाम चूंकि वक्त की किल्लत इसलिए मैं मुख्तसर तौर पर बताऊंगा किस्सा क्या है। नावल के अज्जा में जो पहली बात आती है वो है किस्सा। किस्सा यानी नावल का असल मौजू क्या है उसको हम किस्सा कहते हैं। फिर उस असल मौजू को उसमें से जो बातें मतलब उस नावल का जो असल मौजू है उसको जब कहानी की शक्ल में तरतीब से बताते हैं उसको क्या कहते हैं, प्लॉट कहते हैं। फिर आता है किरदार। आप जानते हैं जाहिर है कि किरदार मतलब रोल, और किरदार हर एक नावल, हर एक दास्तान, हर एक अफसाने में वो नहीं किसी भी नावल, किस्सा या कहानी में शामिल हो इंसान जो उसकी कहानी को बढ़ाते हैं, उस कहानी को बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको किरदार कहते हैं। और इस किरदारों को पेश करने का अमल को किरदार निगारी कहते हैं। नावल में एक चीज जो और आती है अज़ाए तरकीबी वो है मकालमा। मकालमा के लफ्ज के माने होते हैं दो लोगों का आपस में बातचीत, सवाल जवाब के अंदाज में। बहुत से नावलों में आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि सवालिया अंदाज तैयार किया जाता है, सवाल जवाब का अंदाज तैयार किया जाता है, उसको हम मकालमा कहते हैं। नावल का जो ये जुज़ है उसको क्या कहते हैं, मकालमा कहते हैं। किसको मकालमा? मकालमा में क्या होता है कि दो चीजों का आपस में सवाल जवाब के अंदाज में बात करना, उसको मकालमा निगारी कहते हैं। फिर बात आती है मंजर कशी। मंजर कशी मतलब नावल जिस माहौल में, जिस मंजर में पेश किया गया हो कि उस मंजर को लफ्जों के जरिया इस तरीके से पेश किया जाए कि वो मंजर आंखों के सामने आ जाए। जैसे मिसाल के तौर पर हम रुस्वा के नावल जब पढ़ते हैं मुराद जान अदा, तो मुराद जान की जिंदगी किस तरह से गुजरी होगी वो सारे मंजर हमारी आंखों के सामने आ जाते हैं, वो है मंजर, उसको कहते हैं मंजर कशी। फिर एक नुक्ता नजर, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हर एक मुसन्निफ का, हर एक राइटर का अपना एक खास और मखसूस नुक्ता नजर होता है। जैसे डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल क्या है, उनके सभी नावल का मौजू जो होता है वो होता है इस्लाही, रिफॉर्मेटिव। कहने का मतलब मेरा ये है कि नुक्ता नजर मतलब कि हर एक मुसन्निफ का जो अपना नजरिए ख्याल होता है किसी की लिखने का या पढ़ने का, उसी क्या कहते हैं, उसको नुक्ता नजर कहते हैं। और उर्दू के जितने भी दानिश्वर हैं, चाहे आप नस्र के हो या शेख हो, सबका नजरिया अपना अपना मुख्तलिफ। जैसे शेख इब्न ने उनका नुक्ता नजर ये है कि वो देहात की जिंदगी और उसके मसाइल को नावल में और अफसाने में पेश करते हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल में क्या कि मुस्लिम घरानों की जिंदगी और उसके मसाइल को पेश करते हैं, लेकिन नजरिया क्या होता है, उनका जो नजरिया होता है वो इस्लाही नजरिया होता है, सोशल रिफॉर्मेटिव नजरिया होता है। फिर लास्ट नावल की जो जुबान अज़ाए तरकीबी में आखिरी बात आती है होता है नावल की जुबान। आमतौर से नावल की जुबान के लिए पूरी अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए जो मौजू से मुनासिबत रखती हो। अगर ऐसा होगा नावल यकीनन बेहतर होगा। आज की इस लेक्चर में बस इतना ही, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।